بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہم ناول شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے لازوال عشق، تحریر کردہ ہے فروا خورشید کے قلم سے۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب عورت روتی ہے تو صرف وہ اکیلی روتی ہے، لیکن جب مرد روتا ہے تو ساتھ ساری دنیا کو رلاتا ہے۔ یہی حال اس وقت سلطان محل کا تھا۔ وہ جو خود کو کسی ریاست کا بادشاہ سمجھتا تھا، آج یوں دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سلطان محل کے صرف لوگ نہیں بلکہ در و دیوار بھی نوجوان کی بے بسی پر رو رہی تھیں۔ عرفہ بیگم نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ایک دل دہلانے والی چیخ نے ان کا استقبال کیا۔ یا اللہ خیر کہتے ہوئے اس نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی، جس کے اندر کا منظر دیکھ کر ان کی پیشانی پر لاتعداد بلوں نے جگہ لے لی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی زوردار آواز سے وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اب یوں تھا کہ مسکان کا ہاتھ عمر کے بالوں میں تھا اور عمر کے ہاتھ میں اس کے خوبصورت بالوں کی چوٹی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا تھا تم دونوں نے؟ کوئی تمیز ہے تم دونوں؟ ذرا گھر سے باہر کیا جاؤ، واپسی پر گھر کا کباڑا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مسکان کے کمرے کو دیکھ کر طنز کیا۔ وہ امی، بس تم تو چپ رہو، کب بڑی ہوگی تم؟ کب جائے گا تمہارا یہ بچپنا؟ کل کو دوسرے گھر جانا ہے تم نے، کیا کہیں گے کہ کیا تربیت کی ہے ماں نے؟ اف اف امی، کتنی دفعہ کہا ہے مجھے کہیں نہیں جانا، بس بابا کو چھوڑ کر۔ اف، وہ سب نمک کے اف کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا مکھی؟ دیکھو عمر، اس کو صرف بابا کو نہیں چھوڑنا، مطلب ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ اس سے پہلے ان کا ڈرامہ عروج کو جاتا، عرفہ بیگم نے یہاں سے جانا بہتر سمجھا، کیونکہ ان کو اپنی اولاد کا پتہ تھا۔ اوئے سن، میں نے سنا ہے اس دفعہ ہم عمر اور مسکان سے اور برداشت نہیں ہوا، اسی لیے ایک ساتھ بولے، کیونکہ نمل نے ہم کو کافی لمبا چھوڑ کے چپ ہو گئی تھی۔ ملازم نے ڈرتے ہوئے دروازے پر دستک دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے صاحب کو غصہ آ گیا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتا، آلیان شاہ اپنی پوری شان و شوکت سے باہر نکلا اور اس نے کہا، جی کیا مسئلہ ہے؟ شبیر صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شبیر نے ڈرتے ہوئے کہا، جی چھوٹے صاحب، وہ آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ آلیان شاہ، جی ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مردان خانے کی طرف گیا، کیونکہ پتا تھا کہ اس کو اس وقت اس کا باپ وہیں پائے گا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ڈیڈ، آپ نے مجھے بلایا؟ خیریت؟ رحم شاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ کو کچھ کام کے لیے گاؤں جانا پڑے گا۔ آلیان شاہ نے شوق کیفیت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کا باپ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو گاؤں سے سخت نفرت ہے۔ ڈیڈ، آپ کو پتا ہے؟ رحم شاہ نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی بولنے سے پہلے روک دیا۔ مجھے پتا ہے آلیان شاہ، کچھ کام مصلحت کے طور پر کرنے پڑتے ہیں۔ ڈیڈ، کیا میرا جانا ضروری ہے؟ جی میرے شہزادے، آپ کا جانا بالکل ضروری ہے۔ اوئے بھینس، تم آج کہاں سے آ ٹپکی؟ ہم نے تو تمہاری کل خانی کے چاولوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں آلے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مسکان نے عالیہ کو درمیان میں گھسیٹنا لازمی سمجھا۔ چپ کر جا مصر کی شہزادی، بجائے میرا حال پوچھنے کے تم خود شروع ہو گئی۔ اس وقت وہ اپنے کالج میں تھی۔ مسکان، عالیہ اور حیا تینوں دوست تھیں۔ وہ لاء کے آخری سال میں تھیں۔ وہ بہت جلد انہوں نے پریکٹس کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ خیر، انسان کے بس میں صرف منصوبے بنانا ہوتا ہے، وہ مکمل ہوں یا نہیں یہ تو بس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ رحم شاہ نے اپنے شہزادے کو دیکھا، جو نہ صرف شکل میں شہزادہ تھا بلکہ قسمت کے معاملے میں بھی شہزادہ تھا۔ وہ ان چند لوگوں میں سے تھا جن کی مرادیں بن کہے پوری ہو جاتی ہیں۔ خیر، یہ تو آنے والے وقت نے بتانا تھا کہ ایک شہزادے کو بے بس کیسے ہونا ہے۔ اوئے لیمو، آج یہ ملکہ دو جہاں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آج تک آئی نہیں کیا وہ؟ اور کچھ اس کی شان میں بکتے اس وقت مسکان نے انٹری مار دی۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے ہی یاد فرما رہے تھے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اچھا چھوڑو یہ بتاؤ، ہیرو نظر نہیں آ رہا کہیں؟ ابھی وہ کچھ اور ارشاد فرماتی، زوردار چپل نے اس کی بولتی بند کر دی۔ اف امی، آپ کے تو نشانے بھی پکے ہیں، تبھی تو ہیرو بیچارے پھنس گئے۔ شرم کر لے شرم، تیرا باپ ہے جس کے بارے میں اول فول بک رہی ہے۔ عرفہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک مسکان تھی جو ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اللہ پوچھے ایسی اولاد سے۔ عرفہ بیگم تنفن کرتی گئیں اور پیچھے ان دونوں کے کہے تھے۔ رحم شاہ اور عالم شاہ دو بھائی تھے۔ رحم شاہ کی ایک اولاد تھی آلیان شاہ، اور علم شاہ کی دو بیٹیاں مسکان شاہ، نمل شاہ اور ایک بیٹا عمر شاہ تھا۔ رحم شاہ نے اپنے پسند کی شادی کی اور شہر جا بسے۔ عالم شاہ نے اپنی خالہ زاد سے شادی کی اور انہیں اپنے گاؤں سے بہت لگاؤ تھا، اسی لیے وہ بھائی کے اصرار پر بھی شہر نہیں گئے۔ آلیان شاہ اپنے باپ کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ مسکان لاء کر رہی تھی، عمر MBA کر رہا تھا، جبکہ سب سے چھوٹی نمل ابھی سیکنڈ ایئر میں تھی۔ زندگی اپنی ڈور پر چل رہی تھی، سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے، لیکن کیا ہے نا کہ خوشیاں تو بس تھوڑی ہوتی ہیں۔
अर्शिये, तुम भी साथ चलती, मैं वहाँ क्या करूँगी? उफ आलियान, तुम वहाँ रहने नहीं जा रहे, काम के सिलसिले में जा रहे हो। अर्शिया ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। पता नहीं समझा था या नहीं, लेकिन खामोश लाजमी हो गया था। 7 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो आज पहली बार गाँव पहुँच गया, और उसके साथ 2 और उसके साथी वर्कर्स। अजलान उसका दोस्त भी था। खान इंडस्ट्री से उनकी पार्टनरशिप थी, जिसके काम के सिलसिले में उन्होंने यहाँ जगह देखनी थी। अभी वो कुछ देखकर फारिग हुए तो वो एक होटल में आ गए। ये गांव काफी बड़ा था और बस नाम का गांव लग रहा था, वरना वहाँ तमाम सहूलियात मौजूद थीं। ओए चमगादड़, चल आज क्या याद करेगा, किस सखी से पाला पड़ा है। जा बेटा, लूट ले जहाँ आज तुझे खुली छूट है। और इस वक्त उमर, मुस्कान, नमल और बिनिश, जो उनकी कज़न थी, एक साथ पार्टी कर रहे थे, और ये पार्टी उनको मुस्कान ने अपनी पोजीशन लेने की वजह से दी थी। वो इस वक्त इतना थका हुआ था, वो चाहता था कि जल्द से जल्द सो जाए, लेकिन अपने दोस्त की वजह से बैठा था। चल चल बेलन देवी, अपनी ख्वाहिश बता, उमर ने बिनिश को छेड़ते हुए कहा, जिसने बगैर बुरा माने अपनी ख्वाहिश बताई। यूं वो अपनी अपनी ख्वाहिशात सब बताने लगे। अभी वो जाने वाला था तो उसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजी। मेरी ख्वाहिश है कि भरी जवानी में मरूं और जब मेरा जनाजा उठे तो दुनिया देखती रह जाए। अभी वो अपने ख्यालों में पता नहीं क्या क्या कहने वाली थी, जब उमर की थप्पड़ से वो दुनिया में वापस आई। आलियान ने एक नज़र उस लड़की को देखा और सर झटक कर चला गया। वो जिस वक्त घर वापस आए तो रात के 9 बज रहे थे। बाकी सब तो अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मुस्कान अपने बाबा की तरफ चली गई। दरवाजे पर दस्तक देते हुए हमेशा की तरह शुरू हो गई। क्या बात है हीरो, आजकल वक्त नहीं देते। खैर है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? और आजकल घर भी कम नजर आते हैं। वो अपनी धुन में लगी हुई थी जब उसकी नजर अचानक अपने बाप के साथ बैठे लड़के पर पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ था। जो इस वक्त उसके बाप के काम वाले उनके घर थे, उसे समझ नहीं आई वो क्या करे। जब उसकी मुश्किल समझते हुए उसके बाप ने उसका काम आसान किया। आओ बेटा, इनसे मिलो, ये हैं आपके कजन आलियान शाह, और आलियान, ये है हमारी बेटी मुस्कान। आलियान ने एक नजर ऊपर देखा। ये तो वही लड़की थी जिसकी बेतुकी ख्वाहिश सुनकर वो आया था। बाबा, मैं चलती हूँ, सुबह बात होगी। आलियान तो उसके इस रवैये से हैरान हुआ। बदतमीज, जिसे सलाम करने की तमीज नहीं। मुस्कान के बाद दोबारा काम की बातों में लग गया, लेकिन आलियान बार बार मुस्कान के बारे में सोचने लगा कि जिसने उसे सलाम तक नहीं किया था। उफ मुस्कान, क्या हो गया, इतने जोर से दरवाजे को क्यों बंद किया? नमल, जो सोने की तैयारी कर रही थी, मुस्कान को यूं गुस्से में देखकर हैरान हुई। मुझे इश्क है तेरी जात से, मुझे इश्क है तेरी हर बात से, तेरे रूठने मनाने से, तेरी हर बात के मुकर जाने से। मुझे इश्क है तेरी जात से, तेरी नज़रों के चुराने से, तेरी बातों के भूल जाने से। मुझे इश्क है तेरी जात से। वो इस वक्त ख्यालों की दुनिया में था जब अर्शा की कॉल आने से वो हाल में वापस लौटा। खैर है आलियान शाह, सुबह से ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, कहीं कोई गांव की शहजादी पर दिल तो नहीं आ गया? माफ करो अर्शा, कैसी बातें कर रही हो? आलियान शाह अब इतना गिरा हुआ म्यार नहीं रखता। उफ आलियान, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। अभी वो फोन पर लगा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। ओह हेलो यंग मैन, मैं उमर शाह, आपका गरीब कजन। सॉरी यार, हमें नहीं पता था हमारे गरीब खाने पर आप तशरीफ ला रहे हैं, वरना हम कल बाहर नहीं जाते। चलो बाहर, बाबा बुला रहे हैं। उसने आलियान को बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो ऐसा ही था। नीचे सब नाश्ते की मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे, सिवाय मुस्कान के, जो अपने खाने में मसरूफ थी। नमल और उमर उससे बातों में लगे थे। मुस्कान नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई और शाम तक बाहर नहीं निकली। शाम ढलते ही वो अपने कमरे में था और इस वक्त वो सब कुछ भूल के सो गया। हाँ हाँ यार, बस हम आ गए हैं, तो चल बाहर। बगैर तो मैं कोई गली का गुंडा हूँ, अंदर मरो और मेरी हिटलर माँ से इजाजत लो, फिर मैं चलूंगी साथ। मुस्कान हया लोगों को हदायतनामे देकर फोन बंद कर गई। इन तीनों ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। वैसे तो मुस्कान को कोई मसला नहीं था, लेकिन उस दिन के मुस्कान का रवैया जो आलियान के साथ था, उस वजह से उसकी माँ नाराज थी। वो इस वक्त अपने दफ्तर में बैठा था जब एक अजीब शक्ल वाला आदमी अंदर आया। फिर उनके दरमियान पता नहीं क्या तय हुआ। वो जिसको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, आज उसके कहकहे गूंज रहे थे, ये जाने बगैर कि आज के कहकहे उसके लिए कैसे साबित होंगे। और खुदा खुदा करके वो दिन भी आ गया जिसका मुस्कान को बेसब्री से इंतजार था। आज उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई और उसका ख्वाब पूरा हो गया, इसीलिए वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी। आलम शाह इस वक्त अपने डेरे पर था और जब उसे कॉल वसूल हुई और उसके बाद उससे वहाँ रहना मुहाल हो गया। अरे मुस्कान, तुम खैरियत अरे मुस्कान, तुम यहाँ खैरियत से? उसने उससे पूछा, जो उसका क्लासमेट था। हाँ बस थोड़ा काम था, मुस्कान ने ये कहकर वहाँ से जाने में भलाई समझी। बोलो खुदा बख्श, काम हुआ? सर आपका हुक्म हो और काम ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो जो जमीन पर फिरौन बने फिरते हैं, ये भी नहीं सोचते कि जब उनका हिसाब होता है तो इबरतनाक होता है। चुड़ैल, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे फुल्लन देवी बनकर क्यों जा रही हो? अभी मुस्कान ने एक ही सीढ़ी पर कदम रखा था जब उमर की आवाज ने उसका पीछा किया। ओए तरबूज की शक्ल, नजर नहीं आ रहा? कमरे में जा रही हूँ।
वही हम भी पूछ रहे हैं, आज चांद कहाँ से निकला है? ना, दिन को कौन सा चांद चढ़ता है, ये तो बताना जरा। जिन कहीं के। देखें, आप समझने की कोशिश करें, जितना हो सके उनको आराम और सुकून की ज़रूरत है, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अल्फाज नहीं थे किसी बम से, अल्फाज नहीं थे, कोई बम था। कैसी भी माँ बाप के लिए अपनी जवान औलाद के लिए ऐसे अल्फाज सुनना, लेकिन वो क्या करते, उनके बस में कुछ नहीं था। जिसे गरूर था अपनी ज़ात पे, वो बेनिशान होके रह गया। उसे ढूंढते क्यों हो आसमां पे, वो तो खाक में ही बह गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, वो अपने बाप के कमरे में गई और उसने कमरे में अंधेरा पाया और इस कदर खामोशी थी जैसे यहाँ कोई वजूद ही ना हो। वो जाके अपने बाप के कदमों में बैठ गई। वहाँ ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। आपने मुझे बुलाया बाबा, उसने बात का आगाज किया, क्योंकि वो जानती थी कि कोई तो खास वजह है, वरना उसका बाप उसके होते हुए कभी खामोश ना रहता। मुस्कान, उसके बाप ने इतनी मध्यम आवाज में कहा कि अगर उसकी तवज्जो उनकी तरफ ना होती तो वो कभी सुन ना सकती। मुस्कान बेटा, मैं आज तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मेरा बेटा मुझे मायूस नहीं करेगा। प्लीज बाबा, जो भी बात है साफ साफ कहें। मुस्कान, मैं चाहता हूँ तुम आलियान से शादी कर लो बेटा। पर बाबा, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। बेटा, मैं जानता हूँ आपकी बात, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। वो ये कहकर रुके नहीं, बल्कि बाहर चले गए। क्या बात है शहजादे, आज काफी खुश नजर आ रहे हो। जी डैड, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी जी बोलो, हम सुन रहे हैं। रहम शाह से पहले बेगम आनिया बेगम बोली। डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, उन दोनों की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, वो खुद कब से यही चाहते थे। चलो मैं बात करती हूँ सलमा बेगम से। नो नो मॉम, जैसे आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। मैं अरशे से नहीं, मुस्कान आलम अंकल की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा, इससे पहले कि वो कुछ कहती, रहम शाह ने रोक दिया। ठीक है बेटा, फिर कब जा रहे हैं रिश्ता लेने? बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है, चले जाएंगे। मॉम, जाना तो है, वैसे फिर देर क्यों, पहले तो आपको बहुत जल्दी थी, अब क्या हो गया है? ठीक है, हम कल चले जाएंगे। रहम शाह ने जब बात बिगड़ती देखी तो बोलना जरूरी समझा। उफ, क्या हो गया मुस्कान, आलियान भाई कितने प्यारे हैं, हर लड़की का क्रश होंगे। एक तुम हो ना शुक्री, जो रोए जा रही हो। बस चुप करो और सो जाओ, कल तुम्हारे ससुराल वाले तशरीफ ला रहे हैं। जिन पर गुजरी बस उन्होंने जाना, लोग तो हंस के टाल देते हैं। वक्त की एक खूबी है, वो किसी के लिए रुकता नहीं, जैसे मुस्कान शाह के लिए वक्त नहीं रुका। आज वो अपने खून के रिश्तों को 20 साल बाद देख रही थी। लोग आज की जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि सालों तक एक दूसरे को देखने का वक्त नहीं मिलता। उनके जाने के बाद उसे पता चला कि इस जुमे को उसका सादगी से निकाह था, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जुमा जो कि 2 दिन बाद था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। आलियान, तुम कितने मीसने हो, बात शादी तक पहुंच गई और तुमने बताना गवारा नहीं किया। यार बस दिल की बात है, हम तो बस बेबस हो गए। अल्लाह आलियान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों भाई, हमारे पास दिल नहीं है क्या? चलो, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करवाओ। दिन कैसे गुजरे पता भी नहीं चला और वो दिन भी आ गया जिसका कम से कम मुस्कान को बिल्कुल इंतजार नहीं था। यूं फिर देखते देखते वो मुस्कान आलम शाह से मुस्कान आलियान शाह बन गई। वो जो कहती थी, देखना इस दफा मैं रस्म तब्दील करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी बल्कि लड़का आएगा, आज बाप के मान की खातिर चुप थी, या फिर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। जब वो सुल्तान महल पहुंचे उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। फिर सारी रस्मों के बाद उसे 10 बजे आलियान के कमरे में बिठाया गया। वो कमरे को देख रही थी, कमरा नहीं कोई बादशाह का हुजरा लग रहा था। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब दरवाजा खोलने की आवाज आई वो अपने आप में सिमट गई। उसने दरवाजे को जोर से बंद किया और अपने बेड के करीब आया और एक झटके से मुस्कान को खींचा। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, सीधा आलियान के सीने से टकरा गई। इतनी शिद्दत से उसने पकड़ा था, मुस्कान को लगता था उसका बाजू मफलूज हो जाएगा। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या लगता है आलियान शाह तुम्हें यूं देखेगा तो दीवाना हो जाएगा? उसकी बात पर मुस्कान ने ऊपर उसकी तरफ देखा। उस वक्त आलियान शाह को लगा जैसे कि वक्त थम सा गया हो। उस वक्त उसकी गहरे कलर की आंखों में उसके लिए देखना दोबल हो गया। उसने झटके से छोड़ा, जाओ जल्दी से तब्दील करके आओ। बैलेंस कायम ना होने की वजह से वो नीचे गिर गई। मेज का कोना लगने की वजह से उसकी गर्दन पर नील पड़ गया। वो उससे अलहदा होकर सोफे पर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। ओए बिल्ली, तुझे क्या हुआ? यहाँ क्यों सीरी देवी बनी बैठी है? मुझे मुस्कान याद आ रही है। बाबा ने इतनी जल्दी क्यों मचा दी? तुम्हें पता तो है आप ही को कितना शौक था वकालत करने का। उमर भी उदास हो गया है। वैसे उनकी जोड़ी लग बहुत प्यारी रही थी। नमल ने उमर की उदासी दूर करने के लिए बात तब्दील कर दी। वो तब्दील करके आई तो अपने बालों को पिन्नों से आज़ाद करने लगी।
तुम पूछोगी कि नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की? आलियान ने चोर नजरों से उसे देखते हुए पूछा। जो भी हो, वो उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने कहा। क्योंकि मुझे अपने बाबा से इश्क है। आलियान को लगा जैसे वो उसका मजाक बना रही है। वो उठा और उसके करीब आ गया और उसके बालों को देखने लगा जो उसकी कमर तक आ रहे थे। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, उसने एक ट्रांस की कैफियत में कहा। और नहीं तो क्या, मुझे बाबा के अलावा अपने बालों से इश्क है। ओह अच्छा, आलियान ने कहा और बाहर चला गया। अजीब है, मुस्कान ने सोचा और अपने बालों में कंघा करने लगी। इतने में वो वापस आ गया। तो तुम्हें अपने बालों से इश्क है? चलो तुम्हें मुंह दिखाई देनी है। ये कहते हुए उसने उसके खूबसूरत बालों को कैंची से गर्दन तक काट दिया। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। ये कहते हुए वो सोफे पर जाकर बैठ गया। मुस्कान सकते की कैफियत में थी। अपने आंसुओं को जब्त किया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था मुझ पर छोटे बाल ज्यादा सूट करते हैं। और मैंने सोचा था आप जो मुंह दिखाई देंगे मैं कब्र में भी अपने साथ रखने के लिए बोलूंगी। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। चलो दुनिया की चीज नहीं होगी, अच्छा है। वो जो सोच रहा था अभी रोएगी, उसकी बात सुनकर उस तक आया और उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। मुंह दिखाई तो ले ली, अब मुंह भी देख लेते हैं। पहले तो कुछ और सोचा था, लेकिन अब तो रहा नहीं जा रहा। मुफ्त की शराब तो काजी भी पी लेता है, तो हम क्यों ना शुक्री करें। पहले मुझे रातें रंगीन करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और ये सब उसकी तजलील करने के लिए कह रहा था, जबकि वो एक साफ और मजबूत किरदार का मर्द था। अब तो सामान घर में मिल रहा है, तो बंदा क्यों ना शुक्रा बने। ये कहते हुए उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। इसके बाद वो उससे अपने सारे हक लेता गया, जिसमें इज्जत और प्यार नहीं बल्कि शिद्दत और बेरहमी थी। अरे जल्दी करें, नाश्ता लेकर भी जाना है वरना देर हो जाएगी। वो अफरा तफरी में लगे हुए थे। फिर जब वो नाश्ता लेकर गए तो दिन के 11 बज रहे थे। अरे भाभी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, ये सब हम अपनी खुशी से लेकर आए हैं। वो उठा तो उसने देखा कि उसकी तैयारी मुकम्मल होने को थी। उसने तो सोचा था कि उसकी आंखें सूजी हुई होंगी रोने से। वो तो यही चाहता था वो रोए, लेकिन उसे रिलैक्स देखकर उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। वो उठा और शिद्दत से उसके गर्दन पर झुक गया। बस एक सीख की आवाज उसके मुंह से निकली। उसके झुकने की वजह से उसके झुमके की पिन उसकी गर्दन में धुस गई, जिससे खून की बूंद निकलने लगी। उसने बेड पर गिराया और खुद बाथरूम में चला गया। वो तब्दील करके बाहर आया तो वो सबसे बातों में ऐसे लगी हुई थी जैसे बहुत खुशगवार वक्त गुजार के बैठी हो। फिर सबके साथ बहुत खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। कुछ देर के बाद वो चले गए तो फिर मजबूरन उसे भी कमरे में आना पड़ा। वो लैपटॉप पर लगा बैठा था तो उसने भी शुक्र किया और सो गई। रात की थकावट थी जिसकी वजह से वो बहुत जल्द नींद की वादियों में चली गई। अभी उसे सोए हुए घंटा नहीं गुजरा था जब उसे किसी ने झिंझोड़ा तो वो डर के उठ गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया वो कहाँ है। फिर सारी रात और दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। महारानी, मैंने तुम्हारे बाप को इसलिए पैसे नहीं दिए कि तुम यहाँ रेस्ट करो। क्या मतलब? मुस्कान को समझ नहीं आया। सारे मतलब समझा दूंगा। अभी जाओ मेरे लिए कॉफी बना के आओ। वो कॉफी बना के आई तो वो तैयार खड़ा था। उसने एक घूंट भरा, फिर कॉफी का कप उसके ऊपर उंडेल दिया जो उसके पांव पर गिरा। उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। वो उसे नजरअंदाज करके चला गया। जब वो चला गया तो वो सुस्त कदमों से चलकर बेड पर आई और पांव पर मरहम लगाकर सो गई। कौन कहता है औरत बुज़दिल होती है? औरत जब सहने पर आती है तो उफ तक नहीं करती। जिंदगी अपनी जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी सबकी सिवाय मुस्कान की, जिसे पता भी नहीं था कि किस जुर्म की सजा मिल रही है। जहां तक उसे पता था तो सबने कहा था कि आलियान अपनी ख्वाहिश से ये शादी कर रहा है। कुछ देर सोती रही, फिर उठी और नमल और उमर से बात की। फिर तैयार होने लगी क्योंकि उमर के आने का वक्त हो गया था। वो तैयार होकर आई तो रहम शाह और उनकी बेगम पहले से मौजूद थी। उनकी नज़र मुस्कान के पाँव पर गई। क्या हुआ बेटा? रहम शाह ने निहायत प्यार से पूछा। वो बड़े बाबा, गलती से कॉफी गिर गई थी, मैंने मरहम लगा दी है, आप परेशान ना हो। फिर वो बातों में लग गए। मुस्कान के आने से उनके घर में रौनक लग गई थी। बातों के दौरान पता नहीं चला रात के 7 बज गए। फिर आलियान भी आ गया जो पता नहीं किस बात पर माली अंकल को डांट रहा था। इसको उनकी उम्र का एहतराम भी नहीं था। फिर इन लोगों ने खाना खाया। मुस्कान के ये तो निवाले उतारना मुश्किल हो रहा था। वो जानना चाहती थी कि आलियान ने किस पैसों की बात की थी। मुस्कान, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे लिए जूस लेती आना। और वो चला गया। मुस्कान ने उसके लिए उसका जूस बनवाया और ऊपर चली गई। उसके लिए चलना मुहाल हो रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो अपने बाप के घर पर नहीं थी। वो कमरे में आई तो वो चेंज कर चुका था। आलिया ने एक तनकीदी नजर उस पर डाली और जूस का गिलास उठा लिया। वो जो अपनी सोचों में गुम थी, कैसे पूछे, मुंह पे जूस के गिरने पर होश में आई। तुम्हें किसी चीज की तमीज नहीं है? जो भी काम बताओ कोई ढंग से नहीं कर सकती। उसने सख्ती से उसकी कलाई को पकड़ा, जिससे उसकी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई को जख्मी कर गई थीं। तुम्हें पता है, तुमसे शादी करने के लिए मुझे तुम्हारे बाप को पूरे 2 करोड़ देने पड़े।
इतनी तुम्हारी औकात थी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। वो क्या है ना, वैसे भी इतने की तो मैं लोगों को शॉपिंग करवाता हूँ। 2 आंसू उसकी आंखों से निकले जिसे उसने सख्ती से साफ कर दिया। लोगों को या लड़कियों को, उसने मासूम बनकर पूछा। काफी समझदार हो, आलियान ने कहा। हाँ भाई, आखिर बीवी किसकी हो, उसने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। आलियान ने उसको खींचा और सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। तुम्हें बड़ा पता है कितनों से शॉपिंग करवा चुकी हो। मुस्कान को लगा किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा ढेल दिया हो। उसने उसका गिरेबान पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जितनों को आप करवा चुके हैं वो क्या है ना, बद किरदार मर्दों के लिए बद किरदार औरतें और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें। आलियान के लिए और रोकना मुश्किल हो गया। उसने उसको धक्का दिया और बाहर निकल गया। वो अपनी सोचों में मगन थी जो कि बिल से खत्म हुई। फोन की बेल से खत्म हुई। उमर कॉलिंग देखकर उसने अपने आंसू साफ किए और अपनी आवाज को नॉर्मल किया। हेलो, क्या भूतनी, माना कि तुम्हारा शोहर बहुत प्यारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुलफाम शहजादे को भूल जाओ। ओए ढक्कन, ये गुलफाम शहजादा तो कब का हमारा गांव छोड़कर चला गया था, फिर वापस आ गया है। उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, जिससे नमल की हंसी छूट गई और उमर अपना मुंह बनाकर बैठ गया। कुछ देर बात करने के बाद वो फ्रेश हो गई तो बाहर आ गई। वो इस वक्त टेरेस पर बैठा था और वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे शदीद नफरत है, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकता। आलियान ने बगैर देखे उसे बताना शुरू किया। और मैंने तुम्हारी नफरत में वो काम भी किए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसने इसको बताया कि कैसे उसके बाप की ज़मीनों के कागज़ चोरी करवाकर उस पर कर्जा लिया और उसके बाप को मजबूर कर दिया कि उसने अपनी सारी ज़मीनें बेच दी। फिर भी वो इतना पैसा जमा नहीं कर सके कि अपना खानदानी घर छुड़वा सकते। फिर कैसे चाल चली कि उसने उसके बाप के सामने चालाकी से अपनी बात मनवाई और बदले में उसकी बेटी भी ले आया और एहसान भी लगा आया। वो उसकी बातें ऐसे सुन रही थी जैसे वो इससे नफरत की नहीं प्यार की बातें कर रहा हो, और वो उसके बाप को बर्बाद करने की कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे कोई अजीम कारनामा कर दिया हो। और अगर तुम अब अपने बाप को बता भी दो तो मेरा फिर भी वो कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इस दुनिया से कूच कर जाएगा। उसने इतनी बेरहमी से कहा। मुस्कान ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। चलें, काफी टाइम हो गया है। वो जो सोच रहा था वो चीखेगी चिल्लाएगी, लेकिन वो फिर भी पुरसकून थी। यही बात तो उसे गुस्सा दिलाती थी। मुस्कान ने उसके मुंह से अभी सिगरेट निकालने के लिए हाथ आगे किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और सिगरेट से उसके बाजू को जलाने लगा और 2-4 आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके कपड़ों में जज्ब हो गए। चलें, उसने इतना कहा और उठकर चली गई और वो भी उसके पीछे चला गया। उसे लगा वो अंदर जाकर रोएगी, लेकिन वो अंदर जाकर गेम खेलने लगी। उसने सर को झटका और सोने के लिए लेट गया। झटके से उसको करीब किया और सो गया। सुबह वो उठी तो उसने तैयारी की और नीचे चली गई। अरे अरशे, आप? वो अरशे से मिलकर खुश हो गई। फिर वो बातों में लग गए। वैसे अरशे, आपस की बात है, अगर आपकी शादी मेरे शोहर से होती तो अच्छा था, वो आपके साथ प्यारे भी लगते। अभी वो कुछ और कहती, अर्शे की चीख से डर गई और भागकर अर्शे के पास आ गई और पूछा, क्या हुआ? मुस्कान, मतलब तुम पागल हो गई हो? तुम किसी और की नहीं अपने शोहर की बात कर रही हो। ओह अर्शे, आपने मुझे डरा दिया था। मुस्कान, तुम्हारे शोहर को पता चल गया तो क्या? उल्टा खुश होंगे। इस्लाम में 4 की इजाजत है और वैसे भी आज नहीं तो कल करनी है। क्या मतलब तुम्हारा? मुस्कान अर्शा परेशान होकर उसे देखने लगी। कुछ नहीं, चलें रिलैक्स हों और चाय पी लें। मुस्कान, एक बात पूछूं? इस बात पर आलियान को फिक्र लाहक होगी। अल्लाह जाने अर्शे क्या पूछने वाली है, और वो कब से अपनी बीवी के इरशाद सुन रहा था। हाँ जी, पूछो। तुम्हें कभी दुख नहीं मिले? दुखों के अंबार में खुशियों की किल्लत है। मुस्कान ने ऐसे कहा कि फिर अर्शे और उसके कह कहे थे और इन दोनों की आपस में काफी बन गई थी। सुन रहे खरगोश, तुझे पूरी दुनिया में वही मिली थी। प्लीज प्लीज मेरी आपी नहीं हो। क्या क्या बोला तुमने? एक बार फिर बोलो। जब दूसरी तरफ नमल के कह कहे गूंज रहे थे, उनका मजाक बनाते हुए, ये जाने बगैर कि किस्मत उनके साथ क्या करने वाली है। क्या यार, जब से शादी हुई हम तो देखने को तरस गए हैं। अजलान आते ही शुरू हो गया तेरा। अब काम की बात करें। आलिया ने खा जाने वाली नजरों से देखा। लगता है रोमियो घर से अच्छी खा के आया है। शट अप, आलियान ने धाड़ कर कहा तो अजलान भी सीरियस हो गया। फिर दोनों काम में लग गए। असर के वक्त मुस्कान उठी, नमाज पढ़ी, फिर तैयार होकर नीचे चली गई क्योंकि थोड़ी देर तक आलियान ने भी आ जाना था। वो घर आया तो उसका मूड काफी खराब था। खाना खाए बगैर अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ है? रहम शाह ने मुस्कान से पूछा। पता नहीं बड़े बाबा, मैं देखती हूँ। वो अंदर आई तो वो अपने लैपटॉप पर लगा बैठा था। मुझे लगता है आपकी शादी मुझसे नहीं इनसे हुई है। जब देखो इससे चिपक कर बैठे हैं। जाओ मेरी ब्लू शर्ट इस्त्री करो, मुझे काम के लिए जाना है। जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो आपस में बात ऐसे करते थे जैसे बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजर रही हो।
मुस्कान, वो इतनी जोर से दहाड़ा, मुस्कान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ। क्या है, मेरा त्राह ही निकाल दिया। वो अभी तक शौक की कैफियत में था, क्योंकि जब वो फ्रेश होकर आया तो स्त्री उसकी शर्ट का नक्शा ही मिटा चुकी थी और मुस्कान मैडम फोन पर लगी पड़ी थी। हुआ यूं, अभी उसने स्त्री के लिए शर्ट रखी तो हया की कॉल आ गई और वो भूल गई। वो हया की कॉल आ गई, मुझे याद नहीं रहा। मुस्कान ने हकलाते हुए कहा। आलियान ने उसको पकड़ा। जब तक उसको बात समझ आती, वो स्त्री उसके हाथ पर रख चुका था। या अल्लाह, ये कितना जालिम इंसान है। तौबा, अल्लाह माफ करे। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। अल्लाह के बंदे, दूसरा हाथ फिर कभी, मैं फिर आपके काम कैसे करूंगी। जब आलियान ने उसका दूसरा हाथ पकड़ना चाहा तो मुस्कान ने बोला। उसने उसे धक्का दिया और शर्ट लेकर निकल गया। उमर, जल्दी करो, हमें जाना भी है। तुम तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम बारात लेकर जा रहे हो। तो तुम क्या हो बकरी, आज नहीं तो कल लेकर तो जाना है। तो क्या हुआ बकरी, आज नहीं तो कल लेकर तो जाना है। जी जी, जैसी तुम्हारी शक्ल है, किसी का दिल गुर्दे का काम होगा जो तुम्हें अपनी बेटी देगा। चलो बच्चों, जल्दी बाहर निकलो। अरफा बेगम ने उनको टोका। अगर उनकी बहस शुरू हो जाती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो गाड़ी में आके बैठे तो उन्हें पता चला मुस्कान नहीं आ रही। ये क्या बात हुई अम्मी, फिर हम भी नहीं जा रहे। उमर, पागल हो गए हो, हम उन्हें आने का बता चुके हैं और मैंने आलियान से बात की, वो मीटिंग में है। अगर टाइम हुआ तो वो आ जाएगा। चलो अब आराम से। सब कुछ तो पहले से तय था, बस लोगों को पता चले इसलिए रस्म की गई। और पता नहीं मुस्कान को क्या जल्दी थी उसकी शादी की, इसीलिए आज डेट भी फिक्स कर रहे थे। लेकिन वो उदास थे, मुस्कान नहीं आई थी। वो शाम को वापस आया तो वो अपनी सोचों में मगन थी। झटके से दरवाजा बंद किया ताकि वो ख्यालों से वापस आए। उफ, क्या हो गया, मेरा त्राह निकाल दिया। डर से मेरा दिल बंद हो जाता तो क्या मेरी जान छूट जाती। हाँ हाँ, ताकि आप कोई और चुड़ैल ले आते। लेकिन क्या है ना मिस्टर, मुसीबत जल्दी खत्म नहीं होती। उसने इस पर तंज किया। आलियान ने उसका नाम मुसीबत लिखा हुआ था मोबाइल पे। किसका सोग मना रही थी। सोग मनाए मेरे दुश्मन, मैं तो शादी का सोच रही थी। आलियान ने उसे करीब किया और जलती सिगरेट उसकी गर्दन पर रखी। क्यों, एक से दिल नहीं भरा जो दूसरी का सोच रही हो। बात समझ आने पर मुस्कान हंस पड़ी। उफ, आप भी ना, मैं तो उमर की शादी की बात कर रही हूँ। आलियान कभी कभी हैरान होता, वो उसे जितनी तकलीफ देता वो उतनी रिलैक्स रहती। अल्लाह पाक, ये उमर कहाँ चला गया है। मजनू की औलाद। सुबह से इसे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जब भी अननोन नंबर से कॉल आती, या तो उमर कॉल लेता था या मुस्कान। अगले को जलील करती, अगले खुद भी हाथ बांध देते। अभी वो इन सोचों में मगन थी जब मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो उसने मैसेज देखा। जो भी था उसे अच्छे से जानता था, क्योंकि वो उसे उसके नाम से मैसेज कर रहा था। ये तुम रोज किस चीज की दवाई लेती हो। ताकत की भाई, आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए बंदे का ताकतवर होना जरूरी है। अल्लाह पाक, ये उमर कहाँ चला गया है। मजनू की औलाद। सुबह से उसे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जब भी इन अननोन नंबर से कॉल आती, या तो उमर कॉल लेता था या मुस्कान। अगले को जलील करती, अगले खुद हाथ बांधते। अभी वो इन सोचों में मगन थी जब मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा। जो भी था उसे अच्छे से जानता था, क्योंकि वो उसे उसके नाम से मैसेज कर रहा था। ये तुम रोज किस चीज की दवाई लेती हो। ताकत की। भैया, आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए बंदे का ताकतवर होना जरूरी है। मुस्कान ने भरपूर मासूम होकर जवाब दिया, जो अगले को तपाने के लिए काफी था। आलियान ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर सख्त दबाव। दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो इस इंसान की बेहिसी देख रही थी जिसके साथ उसके दो दो रिश्ते थे। वक्त का काम है चलते रहना, वो किसी के लिए रुकता नहीं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, गुजर ही जाता है। घर में उमर की शादी की तैयारियां चल रही थी। सब अपनी खुशियों में मगन थे, किसी को किसी के दर्द की खबर नहीं होती। ये तो दुनिया का दस्तूर है। कौन समझेगा मेरा दुख साहिब, यहाँ सब अपने गम उठाए फिरते हैं। मुस्कान, तुम्हारे मोबाइल पर किसी एक्स की कॉल आ रही है। अर्शे ने उसे आवाज दी, जो किचन में अपने और उसके लिए चाय बना रही थी। हेलो, क्या कर रही हो। आलियान ने जैसे पूछा। चर्च पी रही हूँ, पियोगे। मुस्कान ने तबके जवाब दिया। शाम को तैयार रहना, मेरे दोस्त के घर पार्टी है। और कॉल काट दी। ना सलाम ना दुआ, बस हुक्म जारी किया। नौकर हूँ जैसे। क्या है मुस्कान, और क्या बोल रही हो। अर्शे ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। कुछ नहीं, वो आलियान थे, किसी पार्टी पर जाने का कह रहे थे। मतलब तुमने अपने शोहर का नाम एक्स लिखा हुआ है। अर्शे ने सख्ते की हालत में कहा। हाँ, तो वो किसी के तो एक्स होंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अर्शे ने अपना माथा पीटा। नमल कहीं दोनों से कई दिनों से परेशान थी। कोई मुसलसल उसे शायरी भेज रहा था, वो जिद हो चुकी थी। तंग होकर उसने कॉल बैक की, जो दूसरी बेल पर ही रिसीव हो गई। लेकिन आगे से कोई बोल नहीं रहा था। वैसे तो इश्क का भूत सवार था, अब क्या हो गया, गूंगे हो क्या। अब कुछ मुंह से फूटो भी, लगता है कोमे में चले गए हो। एक तो पाकिस्तान में हर एक पर इश्क का भूत सवार रहता है। कहते हुए उसने कॉल बंद कर दी। जबकि उसकी इस कदर इज्जत पर आलियान का हंस हंस के बुरा हाल था। अब अजलान को एहसास हो रहा था उसने बेवजह स्पीकर पर लगाया हुआ था।
वो घर आया तो वो तैयार हो चुकी थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था जो अब कुछ लंबे हो गए थे, और मेकअप लाइट लगाती थी फिर भी देखने वाले को दोबारा देखने पर मजबूर कर देती थी। पीछे से गला थोड़ा डीप था इसलिए बाल पीछे की जानिब किए हुए थे। वो जो आलियान की नजरें खुद पर मरकूज देख रही थी। अगर आपका एक्सरे हो गया हो तो चले। आलियान ने नजर इधर उधर की फिर आगे चल पड़ा और मुस्कुराते हुए वो उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी में खामोशी रही। जब वो वहां पहुंचे तो काफी लोगों को देखकर मुस्कान एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे पता नहीं था इतने लोग होंगे। आलियान ने उसका रुकना महसूस किया। माना कि जाहिल लोगों का यहाँ काम नहीं होता, लेकिन अब तो खैर है, तुम एक बिजनेसमैन की बीवी हो। बेशक अनचाही, लेकिन हो तो सही, इसीलिए ऐसी चीजों की आदत बना लो। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हमसे भी मिलवा दो शाह साहब। वो अनवर साहब की आवाज से चौंका। क्यों नहीं? फिर सबसे तारुफ करवाकर उसे औरतों की तरफ छोड़कर मर्दों की तरफ आ गया। खाना काफी खुशगवार माहौल में खाया गया। फिर सब अपनी बातों में लग गए। मुस्कान भी अब काफी हद तक रिलैक्स नजर आ रही थी। शाह साहब, मैं तो समझाता था हसन बस आप पे मैं तो समझा था हुसन बस आप पे खत्म होता है। हमें तो पता ही नहीं था कि आपके हुसन से ज्यादा भी हुसन आपके घर में है, अकमल ने हंसते हुए कहा। आलियान उसकी बात पर झूठा हंसा और मुस्कान के सर पर पहुंच गया। चलो। वो जो किसी बात पर हंस रही थी चौंक के ऊपर देखा। क्या हो गया यार, अभी तो आए हो? अनवर ने कहा। यार फिर कभी, अभी मुझे काम से जाना है, इतना कहा और चल दिया। फिर मुस्कान को भी मजबूरन जाना पड़ा। उसका दिल नहीं था जाने का, अभी उसे यहाँ सबसे मिलकर अच्छा लगा। गाड़ी का दरवाजा उसने जोर से बंद किया तो वो समझ गई आलियान बहुत गुस्सा है, इसलिए चुप रही। 20 मिनट का सफर उसने 5 मिनट में तय किया। कमरे में आकर सारी चीजों को तहस नहस कर दिया। बड़े साहब छोटे साहब को होश आ गया। जैसे ही उन्होंने सुना डोर की तरफ भागे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, हमारा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लिया करो। और वो रो पड़े। बाबा प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा तो ना करें। वो जैसे ही कमरे में आया सारी चीजें अपनी बेकदरी पर रो रही थीं और कमरा खाली था। उसे पता था वो इस वक्त टेरेस पर होगा, इसलिए चेंज करके अपने लिए और उसके लिए चाय बनाने चली गई। जब वो वापस आई तो वो यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसने उसे चाय पकड़ाई और खुद बाहर देखने लगी। इतना तैयार होकर तुम क्या साबित करना चाहती थी? आलियान ने उसके कंधे पर सर रखते हुए पूछा। वह हैरान थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो उसके कंधे पर सर रख के खड़ा था। अभी वो कोई जवाब देती, उसने अपनी चीख रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि वो अपनी गर्म चाय उसकी कमर पर उंडेल चुका था। ऐसे लगा किसी ने खंजर उसकी कमर पर पेवस कर दिया हो। तुम चाहती थी लोग तुम्हें देखें? मुझे डिग्रेड करना चाहती थी? वो जो अपनी तकलीफ में थी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं सकी। उसे लगा आज वो बच गई तो कभी नहीं मरेगी। वो रात को बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। रात के 2 बजे घर आया तो वो सो चुकी थी। उसने देखा वो उल्टा सो रही थी। शायद कमर जलने की वजह से वो सीधी नहीं सो पाई। क्या यार अम्मी, कब तक ख्वार करेंगी? इस बिल्ले की शादी की तैयारी में एक वो मैडम है जो ससुराल जाकर हम सबको तो जैसे भूल गई है। नमल की दुहाइयां अरूज पर थीं। तुम आज मुझे बता ही दो, तुम मेरे दोस्त हो भी या नहीं? अजलान आज रोने पर था, जो पिछले कई दिनों से आलियान की मिन्नतें कर रहा था कि मुस्कान से बात करे। खुद कर लो, मैं क्या करूं? उसने अपना मोबाइल अजलान को दे दिया। वो भी सब्र कर करके थक चुका था, इसलिए कॉल मिला दी। मोबाइल के वाइब्रेशन से उसकी आंख खुल गई। रात सही से सो नहीं सकी थी, इसलिए 12 बज गए। उसे पता भी नहीं चला। आलियान की कॉल देख के वो उठ बैठी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, किसी और की आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। हेलो भाभी। वो जी कौन? और शाह कहाँ है? ठीक। जी जी भाभी, आप परेशान ना हो, आपका शाह मेरे साथ बैठा है। मैं अजलान बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहे हो? मुस्कान ने कहा तो उसने एक झटके से आलियान की तरफ देखा। मतलब पूरा का पूरा खानदान एक जैसा है? भाभी, मुझे नमल के बारे में आपसे बात करनी है। आखिर उसने हिम्मत कर ली। शाह है ना आपके साथ? जी भाभी। तो बस आप उससे बात कर लें। वो आपके बाबा आपकी सुनते हैं तो आप बात करें। मैंने कहा है ना, शाह आपके साथ है, आप उनसे बात कर लें। मुझे पता है वो नमल के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जो उनका फैसला वो ही मेरा। उसके साथ ही उसने कॉल काट दी। अजलान तो अपनी खुशी में मगन था। आलियान को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। वो गाड़ी में बैठा ही था जब नमल की कॉल आ गई। भाई, आज आप बता ही दें, हमारे भाई हैं भी या नहीं? आलियान को हंसी आ गई। कुछ देर पहले यही अल्फाज उसका दोस्त कह रहा था। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? भाई, आपकी बीवी का जो ख्याल नहीं, कुछ आप ही कर लें। 2 दिन बाद उम्र की मायूं हैं और आप लोगों का पता नहीं। ओके ओके, हम इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। उसके घर पहुंचते पहुंचते ईशा की अजान होने लगी। वो कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ चुकी थी, अब दुआ मांग रही थी। जब तक वो दुआ मांगती रही वो उसको देखता रहा। आपके लिए खाना ले आऊं? जैसे ही वो फारिग हुई उसने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो लेट गया। फिर दूसरी साइड पे आकर वो भी लेट गई। आलियान ने उसे अपनी तरफ खींचा। नमाज में मेरे मरने की दुआ कर रही थी?
मुस्कान ने शौक नजरों से उसे देखा। उसकी नजरों में ऐसा कुछ था जो आलियान ने एक पल के लिए नजरें दूसरी तरफ कर लीं। उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए, आपको पता है मैं सिर्फ 3 दुआएं मांगती हूँ। मेरे बाबा कभी परेशान ना हो, मेरे बालों को कुछ ना हो, और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आलियान को तीनों दुआएं अजीब लगीं। शुक्र है आप लोगों को वक्त मिल गया। जब वो तीनों वहां पहुंचे तो वो सबसे पहले नमल ने उसकी क्लास ली और उसने अजलान को नहीं देखा था, इसलिए शुरू हो रही थी। नमल, इनसे मिलो, ये मेरा दोस्त अजलान। पर भाई, हमने तो इनको इनवाइट नहीं किया, नमल ने थोड़ी पर उंगली रखते हुए कहा। जहां आलियान और मुस्कान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए इधर उधर देखा, वहीं अजलान की हालत देखने वाली थी। जिंदगी तेरे हालात पर रोना आया, फिर हर एक बात पर रोना आया। वो इस वक्त अपने रूम में आई जहां उसके देखे गए ख्वाबों का जहां था। कुछ देर रहने के बाद वो फिर वापस चली गई। काम करते करते पता नहीं चला वक्त गुजर गया। शाम को उसे पता चला कि आलियान और अजलान को वापस जाना पड़ा, और फिर हया और आलिया भी आ गईं। फिर उनकी ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो गईं। रात देर तक उन्होंने बातें की, फिर सोने लग गई। ये उनकी शादी के बाद पहली बार था जो अकेली रह रही थी। वो जितने भी जुल्म करता था, फिर भी उसे उसकी कमी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ भी यही हाल था। नींद तो उसे आनी नहीं थी, इसलिए वो टेरेस पर आ गया। मायूं का दिन भरपूर थकावट वाला था, कम से कम मुस्कान को यही लग रहा था, इसलिए वो आते ही सो गई। अगले दिन उमर की मेहंदी थी। वो इस बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। कोई उसे पूछ नहीं रहा था, ना कोई उसे बिनिश की कोई तस्वीर ही नहीं दिखा रहा था। जब वो हवेली पहुंचे तो पूरी हवेली रोशनियों से जगमगाती हुई नजर आ रही थी। अजलान और आलियान मर्दों की तरफ चले गए, जबकि अर्शे अंदर की तरफ बढ़ गई। ओ शुक्र है तुम आ गई, वरना मैंने फिर कभी तुमसे बात नहीं करनी थी। सबसे मिलने के बाद वो रूम में आ गई, जहां ब्यूटिशियन हया, आलिया और नमल को तैयार कर चुकी थी। क्या बात है, आज तो लोग काम से गए, उसने नमल से मिलते हुए कहा, जबकि उसको अर्शे की बात समझ नहीं आई तो सर झटक के बाहर चली गई। अर्शे, मैं ना सोच रही हूँ, लगे हाथ कोई ढंग का बंदा तुम्हें मिल जाता तो अच्छा था। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे ढंग का बंदा नहीं मिलेगा? अगर तुम दोनों का हो गया हो तो बाहर भी आ जाओ, हया ने दरवाजे से झांक कर कहा। किसे ढूंढ रहे हैं आप? नमल ने आलियान की बेचैनी नोट करते हुए पूछा। आपकी एक अदद बहन भी है, उसे, आलियान ने शाने बेनियाजी से कहा। कौन सा उसने शर्म खानी थी? वो देखो, अर्शे आ रही है, उससे पूछते हैं। साथ तो थी। अर्शे के साथ आलियान को बातें करते देखा तो नमल उमर की तरफ जाने लगी। जहाँ अचानक किसी ने उसको अपनी तरफ खींचा। माना कि तेरे दीदार के काबिल नहीं हम, तिरछी नजर से देख, मगर देख तो सही। तिरछी नजर से कैसे देखूं, मेरे लेंस खराब हो जाएंगे। नमल ने जमाने भर की मासूमियत सजाकर पूछा। अजलान का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। आए बड़े रोमियो की औलाद। नमल ने उसको देखा और आगे बढ़ गई। चलो भाई, तुम अब अपनी बीवी को देखो, मैं जरा अजलान को देख लूं, अर्शी ने कहा और अजलान की तरफ चल पड़ी। अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आलिम शाह ने मुस्कान को कमरे में देखा तो पूछा। बस बाबा, काम कर रही थी, अभी बाहर जाने वाली थी। आपको कोई काम है? नहीं, बस तुम्हें देखने आया था। मुस्कान बेटा, तुम खुश हो? अल्लाह बाबा, बहुत। हम जो रोए तो दुनिया को रुला गए। तुम हमारी मुस्कुराहट के धोखे में ना जाना। जी चलें बाबा। वो मोबाइल पे लगा हुआ था जब अजलान ने उसे कोनी मारी। क्या है? कहते हुए उसने जैसे देखा, आगे के अल्फाज भूल गया। अपने बाबा के साथ किसी बात पर हंसते हुए वो आ रही थी। होश तो उसे तब आया जब अजलान ने उसे पाँव पर पाँव मारा। वो उछल पड़ा। ओए बस कर, क्या नजर लगानी है? आलियान को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वो जो आलियान की तरफ जा रही थी, अम्मी को बुलाने पर उमर लोगों की तरफ चली गई। बस यार, गलत जगह दिल लग गया। अजलान को तो अपना दुख सता रहा था। वो सोचकर क्या से क्या आया था, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। आलियान बेटा, तुम भी वहां चलो, सब वहां हैं। रहम शाह के कहने पर वो भी वहां आ गया। उसकी नजरें मुसलसल मुस्कान पर थीं। ये बात मुस्कान भी महसूस कर रही थी, लेकिन अनजान बनी बैठी रही। भाभी, मुस्कान जाने लगी जब अजलान ने आवाज दी। वो आपने अंकल से बात की? अजलान, ये काम आपके दोस्त का है, मेरा नहीं। मैंने आपको बताया था बाबा, उनकी बात नहीं टालेंगे। ऐसे शोर शराबे में उसका दम घुटता था, इसलिए वो बेहद थक गई थी। उमर का हंस हंस कर बुरा हाल था, क्योंकि आलम और रहम शाह ने तीनों को डेरे पर रोक दिया था जहां उमर की रस्में हो रही थीं। अजलान ने सोचा था वो नमल से बात करेगा, और आलियान को तो अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। मुस्कान पर इस कदर थकावट थी कि वो कमरे में आते ही सो गई। नमल को पता चल गया था अजलान के प्रपोजल का, और वैसे भी अल्लाह ने औरत को ये सिर्फ दी है, वो अपनी तरफ उठने वाली हर नजर को पहचान लेती है। खुदा खुदा करके वो घड़ी आ गई जिसका उमर को तो बेहद इंतजार था। बिनिश की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए उसकी बहन नमल बन गई। उमर का तो सदमे से बुरा हाल था। ओ लोमड़ी, तुमने चंद पैसों के लिए पार्टी बदल ली, उमर ने सदमे से कहा।
دیکھو عمر، بہن تو میں تم سب کی ہوں۔ سب کی مطلب؟ عالیہ نے جانتے بوجھتے کہا، کیونکہ اس وقت دولہے کے دوستوں کا کردار وہ اور ازلان نبھا رہے تھے، کیونکہ غیر تو کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اف بھائی عمر کی بہن ویسے ہوں، آپ کی اب بہن ہوں، باقی آپ کا دوست وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اسی لیے ان کی بہن ہوں۔ ازلان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لڑکی کا کیا کرے جس کے گھر والے اس کا پرپوزل قبول کر چکے تھے اور وہ اسے بھائی بنانے پر تلی تھی۔ اللہ آپ کو صبر دے، عرشے نے ہمدردی سے ازلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مسکان محسوس کر رہی تھی کہ عالیان کچھ زیادہ ہنس رہا تھا آج۔ اس نے دل میں ماشاءاللہ پڑھا، کوئی شک نہیں تھا وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا اور اس کا ڈمپل اسے مزید کشش والا بنا دیتا تھا۔ پھر ساری رسموں کے بعد بنش کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ نمل ابھی روم کی طرف جا رہی تھی جب اسے میسج ملا، آج آپ میری بات سنیں گی؟ حکم ہے یا درخواست؟ اس نے بھی آگے سے جواب دیا، اگر حکم ہے تو سوری میں آپ کو نہیں جانتی، اور اگر درخواست ہے تو سوچا جا سکتا ہے۔ درخواست ہے جی، درخواست۔ وہ اس کے جلدی سے جواب دینے پر ہنس کر چلی گئی۔ وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب عالم شاہ نے کہا، بیٹا عالیان میرے روم میں ہے، آپ بھی وہاں جائیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر لگا پڑا تھا۔ اوف، آپ اسے یہاں بھی لے آئے؟ قسمیں کسی سوتن سے کم نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ چپ کر کے بیٹھو ورنہ مرو گی میرے ہاتھوں۔ مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ آپ کو تپا کے مروں۔ جی فرمائیں، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ نمل جب چائے بنانے لگی تو ازلان نشے کی مدد سے وہاں آ گیا۔ کیا آپ کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں۔ جی کیا مطلب؟ ازلان کا برا حال تھا۔ ویسے تو جون ایلیا بنے پھرتے ہو، یہ نہیں ہوا کوئی لنگ شنگ سے پرپوز کرتے۔ ہائے کتنے مزے ہوتے ہیں ہیرو ہیروئن کے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ابھی نمل کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب ازلان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پرپوز کیا اور اس کے ہاں کرنے پر رنگ پہنا دی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کو مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ وہ جو لیپ ٹاپ پر خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا، اس کی بات پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ پوچھنے کی وجہ؟ ویسے ہی معلومات میں اضافے کے لیے۔ جب میں تمہارے گھر پہلی بار آیا تھا، یاد ہے تم نے مجھے سلام نہیں کیا؟ عالیان شاہ کو نظر انداز کرنے کی سزا تو بنتی ہے۔ دوسری بار آپ کی وجہ سے میری انسلٹ ہوئی جب تم نے مال میں میرے دوستوں کے سامنے مجھے پہچاننے سے انکار کیا۔ اچھا، مسکان نے کہا اور جا کر سو گئی، کیونکہ اس کا دل کسی چیز کا نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی کام میں مصروف تھا، اس لیے محسوس نہیں کیا، حالانکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ مسکان باتیں کرے، لیکن اہم کام آ گیا جس کے لیے مجبوراً اسے دل کی بات کو نظر انداز کرنا پڑا۔ ولیمہ بھی نمل اور ازلان کی شرارتوں سے بہت اچھا گزرا۔ اس کا تو دل تھا کہ کچھ دن رہے، لیکن عالیان کے کام کی وجہ سے اسے بھی واپس آنا پڑا۔ پھر زندگی اپنی ڈور پر چل پڑی۔ عالیان کو ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑا تو اس نے سوچا عمر لوگوں سے مل آئے، پھر نہیں گئی۔ عمر اور بنش لوگ گھومنے گئے ہوئے تھے، سب لوگوں کی زندگیاں پرسکون ہو گئی تھیں۔ ہم نے روک کر دیکھا ہے اسے، وقت جیسا تھا پھر بھی گزر گیا۔ شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، دوپٹہ لیا اور باہر گئی تو ازلان اور عالیان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عالیان نے تو ایک ہفتے کا کہا تھا، لیکن یہ کیا وہ 2 دن پہلے آ گیا۔ آؤ بھابھی، اب دنیا میں آ بھی جائیں اور ہمیں گرم گرم چائے پلائیں، ازلان نے شرارت سے کہا۔ مسکان مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ازلان جا چکا تھا۔ ازلان کہاں ہے؟ اس کا فون آ گیا تو وہ چلا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ لگتا تو نہیں ہے آپ کو کچھ ہو، ویسے آپس کی بات ہے آپ کبھی بیمار نہیں ہوئی، مطلب بیماری بھی آپ سے ڈرتی ہے۔ دیکھیں مسکان، آپ کے پاس چانس ہے، میں نے 2-4 لوگوں سے آپ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ کہاں کھو گئی ہو؟ عالیان نے اسے کندھے سے ہلایا۔ کچھ نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، آج ہمارا ڈنر ہے تو تیاری کریں۔ وہ اٹھی اور کمرے میں آ گئی، بیڈ پر بیٹھ کر پھر سو گئی۔ وہ آیا تو وہ سوئی پڑی تھی، وہ بھی تھکا ہوا تھا، خود بھی سو گیا۔ شام کو اٹھا، اسے بھی اٹھایا۔ جلدی کرو ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ تیار ہو کر آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی لیکن جانا مجبوری تھا۔ جب وہ پہنچے تو ہر طرف گہما گہمی تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ مسکان کو مسز انور نظر آ گئی تو وہ ان کے پاس چلی گئی، باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ پھر اسے پیاس لگی تو وہ پانی پینے گئی، ابھی پانی پی کے آ رہی تھی۔ ارے مسکان تم یہاں، اور ابھی وہ کچھ کہتی جب اس کی نظر اس کے ساتھ کھڑے سر پر پڑی۔ سر آپ یہاں؟ عالیان نے مسکان کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا تو وہیں آ گیا اور اس نے مسکان کی کمر اس نے مسکان کو کمر سے پکڑا۔ لوگوں کی نظر میں تو پیار تھا لیکن اصل میں اس نے اپنی انگلیاں زور سے اس کی کمر میں پیوست کی ہوئی تھیں۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ تو مسکان، آپ کی پریکٹس کہاں تک پہنچی؟ کہاں سے کر رہی ہیں؟ سر وہ میں نے چھوڑ دی۔ ہو کیا رہا ہے کوئی مجھے بتائے؟ مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔
तकलीफ से मुस्कान का बोलना मुहाल हो रहा था। अगर थोड़ी देर वो अपनी उंगलियां उठाता नहीं तो मुस्कान को लगता कि वो मर जाएगी। क्या शाह साहब, आप ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे जानते नहीं। आपकी बीवी गोल्ड मेडलिस्ट है, ऊपर से मेरी होनहार तालिबा और वकील। मतलब खुदा ने जहनियत तो तुम लोगों को विरसे में दी है। ओह अच्छा। आलियान के लिए बड़ा इंकशाफ था, जो उसे हर वक्त डिग्रेड करता था। उसने कहा, चलो आप लोग बातें करें, मैं आता हूँ। सर से बातें करके उसे बहुत अच्छा लगा और फिर वो वापस आ गई। उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल आई। उसे जब एहसास हुआ तो उसका हाथ किसी ने पकड़ा। कहाँ जा रही हो? कब से नजर थी, अब तो मौका मिला है। कौन बेवकूफ है जो ऐसा चांस मिस करेगा? मुस्कान ने उसे धक्का दिया और भागने लगी। रुक कमीनी, वो उसके पीछे भागा। मुस्कान, क्या हुआ, आप ठीक हैं? ओन, जो उसका क्लास फेलो था, उसने पूछा। हाँ हाँ, वो आपने आलियान को देखा? अभी वो जवाब देता उसने अजलान को देखा और उसकी तरफ भागी। अजलान, मुझे घर छोड़ दो। अजलान, जो किसी से बात कर रहा था, मुस्कान की बात पर चौंका। आलियान आने वाला है, चलते हैं। अजलान, अभी छोड़ सकते हो। फिर उसे जाना पड़ा क्योंकि वो जानता था कि मुस्कान जिद कभी नहीं करती। सारे कामों से फारिग होकर जब वो आया तो 10 बजने के करीब थे। मुस्कान, मुझे एक कप चाय बना दो। वो उठी और चली गई। जब वो बनाकर आई तो वो चेंज कर चुका था। तुम रो रही हो? हाँ, क्यों? वो उठी और उसने आलियान की सिगरेट जलाई और उसको दी और अपना दूसरा हाथ आगे किया। उसके हाथ को पकड़कर अपनी कलाई जला दी, जिसको कुछ देर पहले उस आदमी ने पकड़ा था। आपने उस दिन कहा था मैंने आपको नजरअंदाज किया, इसलिए सलाम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे आप पर गुस्सा था। अब आप सोच रहे होंगे कि गुस्सा क्यों, आप तो पहली बार मिले थे। हक तो बड़े बाबा का था, लेकिन वो सब मेरे बाबा ने किया। जब बड़े बाबा को बिजनेस में लॉस आया तो उन्होंने बाबा से मदद मांगी, जबकि उस वक्त हमारे अपने हालात ठीक नहीं जा रहे थे। तो बाबा ने अपने हिस्से की ज़मीनें बेचकर बड़े बाबा को पैसे दे दिए और उस वक्त हमारे वसाइल का जरिया सिर्फ वही थी। फिर हालात ऐसे हो गए कि हमारे घर सुबह का खाना होता तो शाम का नहीं। एक बार तो पूरे दो दो दिन हमारे घर कुछ नहीं पका। मैं तो कुछ बड़ी थी, लेकिन असल मसला तो उम्र और नमल का था। और जब अभी 1 साल के थे, मैंने बाबा को कहकर बड़े बाबा के हिस्से में से कुछ बेचकर अपना कारोबार शुरू करने का कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर दिन को मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और रात को सिलाई करती। फिर मैंने मुकाबले का टेस्ट दिया और इनाम में मुझे 2 लाख मिले। कुछ बाबा की और मेरी सेविंग थी, कुल मिला के 5 लाख बने। बाबा ने उससे अपनी दुकान खोली। शायद फिर किस्मत मेहरबान हो गई, बाबा का काम खूब चमक उठा। और मॉल में मेरे साथ मेरी दोस्त थी, जो हर अमीर लड़के के साथ दोस्ती करती है और फिर खूब लूट कर छोड़ देती है। उस दिन अगर उसे पता चल जाता कि आप मेरे कजन हैं तो वो नंबर मांगने के लिए मुझे जलील करती, जो कि खुद मेरे पास भी नहीं था। वो उठी और आकर सो गई। आलियान ने भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो खुद बोलने की कैफियत में नहीं था। वो जब उठी तो वो जा चुका था। उसने अर्शे को कॉल करके घर आने का कहा। सारा दिन वो काम में मसरूफ रहा। शाम को घर आया तो उसका काम बहुत रहता था, जो उसे हर हाल में कल जमा करवाना था। मुस्कान ने उसके लिए और अपने लिए चाय बनाई और उसको देकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर उसको देखती रही। उसकी खुशकिस्मती थी शायद, जो उसे काम पर सारी रात लग गई। वो भी सारी रात बैठकर उसे देखती रही। सुबह वो तैयार होकर जाने लगा जब उसने आवाज दी, आलियान। वो तो उसे शाह कहती थी। आज आलियान। वो आई, उसे गले मिली और उसके डिंपल पर लब रखे और कान में सरगोशी की। अब की बार महशर में मिलेंगे तो हिसाब होगा। ये कहकर वो रुकी नहीं, वॉशरूम में चली गई। आलियान तो समझने से कासिर था। उसका काम अहम ना होता तो वो कभी ना जाता। वो अभी मीटिंग से फ्री हुआ था जब उसे अरशे की कॉल आई और उसने जो कहा उसकी समझ में नहीं आया। अरशे, वो पता नहीं आगे से क्या बोला गया। चलो तुम लोगों की मर्जी, आलियान ने कहा और कॉल काट दी। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अजलान ने पूछा। पता नहीं यार, अर्शा की कॉल थी, कह रही थी वो और मुस्कान 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रही हैं। मैंने कहा है मैं भी फ्री हूँ, लेकिन मुझे इनकार कर दिया। चल यार, अब तड़पने की बारी तेरी है। इधर आओ बेटा, परेशान क्यों हो? बाबा आप सो क्यों जाते हैं? बाबा आप सो क्यों जाते हैं? उसने करीब से अपने 5 साल के बेटे के सवाल पर बंद की। बेटा आपकी मामा कहाँ हैं? बाबा वो दादू के साथ हैं। अच्छा, जाने वालों ने सोचा ही नहीं, पीछे रह जाने वालों की अजियत को। दूसरा दिन था उनको गए हुए और उसे लगता था वक्त थम सा गया है। मुस्कान का नंबर भी बंद था और अर्शे का भी। एक घर वाले थे जो इतने रिलैक्स थे, पता नहीं क्या बोला था उन दोनों ने। उसका दिल कहीं नहीं लगता था। और मजनू, क्या सोच रहे हो? अजलान ने उसे ख्यालों से निकाला। अजलान, मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। आलियान, तुमने पी तो नहीं रखी? बच्चे पैदा करने की उम्र में तुझे मोहब्बत हो गई है? मत भूल तू शादीशुदा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम मेरी साली पर जुल्म करे। और भिंडी की शक्ल, मुझे तेरी साली से मोहब्बत हो गई है।
ओह अच्छा, चलो कोई तो अच्छा काम किया। वो शाम को घर लेट आता था क्योंकि उसका दिल घर जाने का करता ही नहीं था। तीसरा दिन भी गुजर गया, शाम थी कि गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। 3 बजे कहीं जाकर उसे नींद आई। अभी 6 बजे थे जब उसकी कॉल आने लगी। अर्शे कॉलिंग देखकर फौरन उठ बैठा। कहाँ हो अर्शे, मुस्कान कहाँ है? पता भेज रही हूँ, वहां पहुंच जाओ। जल्दी से उठा। पता नहीं क्यों उसका दिल कांप रहा था, जैसे सोया था वैसे चला गया। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो इस पते की इमारत के नीचे खड़ा था। कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। तीसरे फ्लोर पर उसे अर्शे नजर आई। क्या हुआ अर्शे, तुम यहाँ? वो कमरे में जाने लगा जब अर्शे ने एक पर्ची उसे पकड़ा दी। मुझे नहीं पता इस्लाम ने जायज़ है या नहीं। मैं चाहती हूँ मुझे पहले गुस्ल आप करवाएं। अल्फाज थे या खंजर? क्या मतलब उसका, उसने अर्शे से धाड़ कर पूछा। तो उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले आई, जहां वो सफेद चादर में लिपटी सुकून से सो रही थी, जो उसकी जिंदगी में आलियान शाह के आने के बाद कभी नहीं रहा था। उसने उसके कदमों पर सर रख दिया। इतनी बड़ी सजा कौन देता है मुस्कान? वो आज चीख रहा था दीवानों की तरह। वो जल्दी से उठा और मुस्कान के चेहरे को हाथों में लेकर, मुस्कान उठो, बहुत हो गया मजाक, उठो यार, तुम्हारा शाह आया है। देखो उसने 3 दिन से चाय नहीं पी। उठो मुस्कान, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, मुझे बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। मुस्कान उठो ना यार, बताओ कहाँ जलन हो रही है, मैं खुद मरहम लगाऊंगा। मैं कभी नहीं जलाऊंगा तुम्हें। तुम अपने सारे बदले ले लेना, मेरे हाथ पांव जला देना, बस एक बार मेरी तरफ देखो। अर्शे ये क्या है? अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है, वो चीख रहा था। और आलियान शाह, ये मजाक है लेकिन किस्मत का, जिसने तेरे साथ खेला है। फिर कैसे वो घर पहुंचे? आलियान शाह को कुछ होश ना था। हाँ, लेकिन उसने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। उसने उसे गुस्ल दिया था अपने हाथों से। और वो जानता था कि यह ख्वाहिश क्यों की गई थी। वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब उसका जनाजा उठा तो सारी दुनिया देखती रह गई। औरतों नहीं बल्कि मर्दों की भी चीखें निकल गईं। 3 दिन तो उसे होश नहीं रहा। आज होश आया तो वो अर्शे के पास आ गया। अर्शे को वो कहीं से भी आलियान शाह नहीं लग रहा था, जिस पर दुनिया मरती थी, और वो भी इस दुनिया में शामिल थी, लेकिन वो ज़र्फ वाली थी। अर्शे, तुम लेकर गई थी मुझे, वापस दो मेरी मुस्कान। तुमने ली थी ना इजाज़त लेकर जाने की? अर्शे बोलो। किस्मत ने तो उसे इजहार करने का भी वक्त नहीं दिया। अर्शे बताओ मुझे क्या हुआ? आर्यन, उस दिन मुझे मुस्कान ने कॉल की और घर आने का कहा। जब मैं आई तो उसने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें उसके ट्यूमर की रिपोर्ट थी, और ट्यूमर लास्ट कंडीशन पे नहीं था। उसका इलाज हो सकता था, लेकिन वो रिपोर्ट पुरानी थी, मतलब तब की थी जब तुम्हारी शादी हुई, उससे 1 हफ्ते पहले की। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था इलाज मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन अब की रिपोर्ट के मुताबिक उसका कैंसर लाइलाज मर्ज बन चुका था। ऑपरेशन एक रिस्क था। उसकी जिस्मानी और जहनी हालत भी सही नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये रिस्क लिया। अर्शे ने एक सिसकी ली और कहा, पता है आलियान, उसने क्या कहा था? अगर बच जाओ तो मेरे बाबा को कॉल करना, और अगर मर जाऊं तो आलियान को कॉल करना, और मेरा गुस्ल एक ऐसी औरत से करवाना जो मेरे राज को राज रख सके। और तुम्हें पता तो है वो राज कौन से हैं? तुम्हें पता है मैंने उससे पूछा इतने जुल्म क्यों सहे? कहती है मुझे अपने बाबा से इश्क है और आलियान उनका मान है। फिर कैसे उनका मान तोड़ दूं? मुझसे दोस्ती का हक अदा करने का कहा, और वो तुम्हारा ख्याल रख के अदा करने को कहा। इसके अलावा उसकी सुनने की बर्दाश्त नहीं थी। वो गिर गया। 2 हफ्ते गुजर गए, आंसू थे जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज आलम शाह लोग भी वापस चले गए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उठकर देखा। हाजरा थी, जो उसकी माली की बीवी थी। साहब, ये छोटी बेगम ने आपके लिए दिया था। उन्होंने कहा कि उनके मरने उससे फिक्रा पूरा नहीं हुआ, वो रख के चली गई। वो उठा और खत को उठाया। अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे इतने मॉडर्न दौर में खत कौन लिखता है। मुस्कान, आलियान शाह लिख रही है। जब आपको ये खत मिलेगा तो हम जन्नत में ऐश फरमा रहे होंगे। आपको पता तो है हम कितने शरीफ थे। मैंने हाजरा को कहा, बच जाऊं तो मेरा खत मुझे वापस करना, वरना अपने छोटे साहब को दे देना। तो आलियान शाह, कहा था ना, आप छोटे झटके देते हैं। जब मैं दूंगी तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। मुझे इस बीमारी का तब पता चला जब मुझे लॉ की डिग्री मिली। मैं बहुत खुश थी, लगता था जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन हमारे मंसूबे बस मंसूबे रह जाते हैं। उस दिन मुझे मेरी रिपोर्ट मिली, जिसके मुताबिक मेरा इलाज मुमकिन था। चलो, सारी नहीं, थोड़ी उम्मीद तो थी। मैंने सोचा बाबा मेरा इलाज करवाएंगे, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। आपकी करम नवाजी से वो भी ना हो सका। आपके दिए गए सारे पैसे जो आप मुझे दिया करते थे, आपके लॉकर में लिफाफे में रखे होंगे। मर तो मैं उस रात गई थी जब आपने बीवी होते हुए भी जब आपने बीवी होते भी आगे आप समझदार हैं। मैंने आपका घर का खाया है तो बदले में आपके काम भी किए हैं, जैसे हाजरा लोग, और कपड़ा जूती फराहम की तो इसका मुआवजा आप वसूल करते थे।
आलियान शाह के लिए डूब मरने का मुकाम था कि उसकी बीवी होके उसके लिए ऐसी सोच रखती थी। पार्टी की रात में मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि उस रात आपके मेहमानों में से किसी ने मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। एक औरत के साथ इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आलियान को लगा उसने अपनी तमाम तकलीफों का बदला यही बात करके ले लिया। किसी भी मर्द के लिए उससे बढ़कर अजियत क्या होगी कि उसकी इज्जत पर किसी ने नजर डाली हो, और वो लाइलम था और हमेशा रहेगा। मैंने हर नमाज में आपकी लंबी उम्र की दुआ की है, आपकी यही सजा है। मैंने अरशे से भी वादा लिया था उससे शादी कर लेना। आलियान शाह, जीते हुए ना सही, मेरे मरने के बाद तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। हम जो जीते थे तो लोग जीने की सजा देते थे, अब जो मरकर सोए हैं तो जीने के लिए आवाज देते हैं। आलियान, तुम्हारे जख्म मुझे इतनी तकलीफ नहीं देते थे जितने तुम्हारे अल्फाज देते थे, फिर भी मैंने तुम्हें माफ़ किया। आलियान शाह, मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। फ़कत तुम्हारी मुस्कान। आलियान शाह उर्फ मुसीबत। आज पूरे 2 साल बाद डॉक्टर की भरपूर कोशिश और माँ बाप की दुआओं की वजह से कोमे से निकलना उसके लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था। खत पढ़ने के बाद वो बेहोश हो गया था, फिर कोमे में चला गया। वक्त का काम है गुजर जाना, और आहिस्ता आहिस्ता संभल रहा था या नहीं ये तो वो जानता था, लेकिन माँ बाप के लिए उसने ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। 4 साल बाद मुस्कान की ख्वाहिश और माँ बाप और ख़ासकर आलम शाह के कहने पर उसने अरशे से शादी कर ली थी, और आज उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साला बेटा और 3 साल की बेटी। इस वक्त वो मुस्कान अस्पताल में बैठा था जब उसकी बेटी आकर उसे गले लग गई, और उसे पता था अब वो मुस्कान के पास जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि वो हर रोज मुस्कान के पास जाते थे और सारा दिन का हाल देते थे। अब वो जिंदगी जी तो नहीं, लेकिन गुजार जरूर रहा था। सारी जिंदगी ऐसे गुजरनी थी, यही उसकी सजा थी। एक अना की तस्कीन के लिए उसने सारे जुर्म किए। ये तो मुस्कान का ज़र्फ था जो उसके सारे राज उसने राज रहने दिए, वरना सब उससे नफरत करते। अनापरस्त इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है। अना सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि इंसानों को भी खा जाती है। इसीलिए खुदारा अना को रिश्तों में ना आने दिया करें। एक अना की तस्कीन ने इबलीस बना दिया, वरना हम भी कभी आदमजाद हुआ करते थे। सो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है, और इसका एंड थोड़ा दुखी, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी कह सकते हैं हम दुखी है। लेकिन ठीक है, कुछ स्टोरियों हर मतलब जिस तरह इंसान की लाइफ में ही ये सब चलता है। कोई अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी खुशी से गुजारता है, और फिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी गुजारने के बाद वो मौत की तरफ जाता है। तो ये एक रियलिटी भी है कि वाक़ई एक लोग अपनी भरपूर जवानी में ट्यूमर्स और कैंसर्स की वजह से बीमार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी वक्त से पहले ही जो है वो दुनिया से चले जाते हैं। तो ये भी एक ज़िंदगी की हकीकत है, और इसे कबूल भी करना चाहिए। और जो राइटर ने मतलब लिखा है वो भी बहुत एंड में जो उसने एक अच्छा मैसेज दिया है कि अना में जो है वो रिश्तों को लेकर नहीं चलना चाहिए। कोई भी रिश्ता है हमारा, बहन भाई हों, मियाँ बीवी हों, कोई भी हैं, माँ बाप के साथ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं या माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, तो उन अनाओं को कभी भी अपने दिल में नहीं पालना चाहिए। और मतलब देखा जाए तो ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी। आप भी कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।